जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सर। कैन यू लिसन टू मी? वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वो उसमें थोड़ी वॉइस का प्रॉब्लम आता था, वो जो एंट्री थी, तो मैंने फिर ये ब्लूटूथ वाला मैंने कहा ये यूज करते हैं, इसमें क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये आज मैं ट्राई जी कर सर, रहा अब आवाज़ भी अच्छी आ रही है। था। हाँ, और बाहर की आवाजें भी इसमें नहीं आ रही। तो हैव यू गॉन थ्रू जी। द स्लाइड्स? यस सर। एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम? नो सर, अभी फिलहाल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। Basically, these were the simple things. I told you time and again that there isn't anything difficult because you can write from yourself a lot of things. There is not a mathematics or physics or chemistry. There, students who are always for Newton laws are always in inverted commas. Um, यस सर। it is a social study, and everybody is a part of the society, of the social fabric, social procedures, social customs, social traditions, social obligations, uh, and social lives. So you are an individual and you are living in a society. That is everything, whatever you have observed during your life. That is not how people behave, how people expect. Even there isn't something very special, but some people think that is special. आपने फोन पे इनवाइट किया, आपने घर आके कार्ड नहीं दिया, मैं नहीं जा रहा आपकी शादी. There are certain things. So there isn't anything logical, or sometimes we say the reason the complaint is not reasonable or rational. But still, some people will say, हाँ ना, तो तुम्हारी गलती है, तुम्हें घर जाके कार्ड देना चाहिए था, हमारी ट्रेडिशन है, एसएमएस पे इनविटेशन नहीं देते. तो ये एक ऐसी चीज है जिसमें आप अपने पास से बहुत कुछ लिखते हैं, आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन हो, एग्जाम्पल रूम, वो लाइफ आपने खुद गुजारी है, आप जानते हैं लोग किस तरह करते हैं, किस तरह बिहेव करते हैं. इवन बहुत सी ऐसी चीजें मदद के बारे में जो हिंदुओं से आ गई हैं बीच में, जिनका इस्लाम में कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन लोग कहते हैं वो लाजमी कर रही है, उसके बगैर तो इस्लाम भी नहीं होगा. मतलब ये रस्म वो रस्म, नजर उतारने की दुआ पढ़ते हैं हम, अल्लाह का शुक्र है कुरान शरीफ से, लेकिन अभी भी कुछ लोग कहते हैं मिर्चें पकड़ के चूल्हे में जलाओ, वो से था. तो दीज आर सोशल फैक्टर्स, और ये चीज हर एक को पता है, आप रहते हैं सोसाइटी में, क्या चीजें कैसी पनपती हैं, आपके पेरेंट्स का असर कितना होता है, आपकी फैमिली का असर कितना होता है, स्कूल में जब आते हो कितना असर होता है, बाद में और लोग ऐड हो जाते हैं, कॉलेज लाइफ में आप आते हो, आप फिर you start playing cricket, football, hockey, you start going to gym, you meet different type of people, and everybody has uh, perpetual imprints on your mind. Even there are यस सर। certain people that are loved by you, or some people are very inspiring and impressive. So those people have a great role in your life. They can convince you of each and every type of custom, ritual, logic, notion, or practice. कुछ लोग कम असर करते हैं, किसी से आपकी इतनी दोस्ती होती है कि वो आप लोग कहते हैं इससे कहलवाओ, इसकी बात ये कभी नहीं टालता. That is, your personality is depending on so many stages handled by so many people. When you are born in a specific family, that is your ascribed status. You cannot change that. You cannot change your parents, your family background, your father, mother's profession, your age, your date of birth, your skin color, your attitude, your genetic code, your DNA. So now science says your DNA and then genetic code is also responsible for your activities or your behavior or your I mean activities. Even they say the tilt towards crime, the tendency to commit a crime, to commit a heinous crime or a major crime, is right installed inside you like a software right from your birth. अगर आपके बाप दादा डाकू थे कोई थे, तो आप में बहुत ज्यादा टेंडेंसी होगी. चार 8-10 बंदों में से 9 के बाप दादा नहीं थे, आपके हैं. आप 10 बंदों को मौका मिला डाका डालने का, तो बाकी 9 हो सकता है रिफ्यूज कर दें, आप डाल देंगे अगर मौका मिला तो वो रिसर्च हो रही है, हर 20-30 साल बाद रिसर्च चेंज हो जाती है.
स्टिल बानो कुर्सिया का नॉवल है राजा गिर, दैट इज a major study in this regard. तो सोशियोलॉजी अभी तक जितने हैं, कुछ लोग बच्चे कह रहे समझ नहीं है मेरे, इसे समझ उर्दू में आपको लेक्चर नहीं, हालांकि उर्दू बोलना मना है टीचर के लिए, ये वायलेशन है यूनिवर्सिटी के रूल की जो मैं करता हूँ। सिर्फ आप लोगों के लिए यार, समझ समझ साथ उर्दू में भी बता दिया, चलो समझ जाओ, तो उसमें ऐसी कोई बात, इसलिए उर्दू है कि आप सारे को समझ आ जाए। तो कोर्स तो माशाल्लाह कवर हो गया है, हम रिवीजन करेंगे, अगले सैटरडे को भी क्लास रख लेंगे। जब तक ये कोरोना वायरस है क्या करना है, मतलब हम फर्स्ट से जाना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह ऑफिस, तो ऑफिस में भी बैठ के मैं ऑनलाइन क्लास ले लूंगा, घर में हुआ घर पे ले लूंगा, सैटरडे को ऑफ होता, तो ये सब मसला नहीं है। जब तक आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते, आपकी क्वेश्चन रहते हैं, हम क्लासेस लेते रहेंगे। बाकी आप वैसे भी व्हाट्सएप ग्रुप है आपके पास, फेसबुक पे पेज है हमारा, अच्छे से पूछ सकते हो। बस फील फ्री टू सर आस्क। पेपर की अपडेट आई थी कि 15 जून से पेपर स्टार्ट है। हाँ 15 जून से स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह। और ये है तो कि सर इसको कोई स्केड्यूल आ गया फिर? नहीं स्केड्यूल अभी नहीं आया, अभी फर्स्ट से तो यूनिवर्सिटी में हम जाना शुरू करेंगे ना, फैकल्टी वाले, ऑफिस खुलेगा अच्छा सब अच्छा कुछ, अच्छा। उसके बाद इंशाल्लाह चीजें हो सही। जाएंगी पुस्तक। और 50% एमसीक्यूज होंगे, 50% जो होगा ठीक वो है। आप करेंगे, वो होंगे सब्जेक्टिव टाइप, 50% ऑब्जेक्टिव होंगे, उसमें एमसीक्यूज होंगे, ट्रू एंड फॉल्स होंगे, और तो इंशाल्लाह पेपर इजी होगा। आपको ऐसे ही काम दिया जाएगा जो आप अपनी अपनी अकल से करना, इस सोसाइटी में ये चीज हो रही है, इसको इस तरह करना है, कैसे करना है, आप क्या कहते हैं। और उसमें कोई 100% सेम आंसर हो ही नहीं सकता। ये नहीं कि ये चीज होगी तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये चीज होगी तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। हर बंदे के अपने व्यूज हैं। सवाल यह है कि आप अपने व्यूज को कितने आर्गुमेंट के साथ देखें, दैट इज योर ड्यूटी। मैं थोड़ी तबीयत मेरी खराब है पिछले 1 वीक से, तो इसलिए मैं वो अपनी वो नॉर्मल अपने वो स्टडी रूम में नहीं हूँ, बेड पे ही हूँ, शेव वेव भी नहीं की हुई। तो पता मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं यहीं से अब ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। ऑफिस वाले को भी मैंने बताया है कि मेरी तबीयत खराब है, ट्रीटमेंट चल रही है, वो हाइपरटेंशन की, बीपी बहुत शूट कर गया था। तो पेपर इंशाल्लाह ये होगा, सोच समझ के करना, उसमें कोई चीटिंग नहीं हो सकेगी, कोई बुक नहीं, अपना दिमाग इस्तेमाल करना है आपने, और सोच समझ के लिखना है जो लिखना है। और आप माशाल्लाह यू आर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स नाउ, आपको पता चल जाता है चीजों का, मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो लिखेंगे मुझे बिल्कुल भी पसंद जी नहीं सर। आएगा। अब इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता, आप कहेंगे जी नहीं, आपका एक व्यू है, आप कहें नहीं जी माँ बाप शरीफ हो तो औलाद शरीफ ही निकलती है, क्योंकि ये माँ बाप का ही काम है परवरिश करना। माँ बाप अच्छी परवरिश करें तो दुनिया कुछ भी कर ले, बंदे को बिगाड़ नहीं सकती। हमने बहुत सी मिसाल, आप 10-12 मिसालें दें, अरे बिल्कुल मिल जाएंगी। जो बंदा कहता है नहीं जी माँ बाप कुछ भी कर लें, जैसे ही बच्चा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाता है, बाहर फिरता है, दोस्तों की सोबत खराब कर दी, तो दोस्त यार जैसे होंगे बंदा वैसे ही हो जाता है। हमने ऐसा इतने इतने अच्छे शरीफों के बच्चे देखे हैं, गंदे दोस्तों में बैठा, कैरम बोर्ड खेल रहे, स्नूकर क्लब पे बैठा, वहां पे ऐसा हो गया ऐसा हो गया, और बाद में एक दिन पकड़ा गया डाका मारता हुआ, तो वो भी सही है। तो इसमें वो ये नहीं कि आप तो गलत, सवाल ये है कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन को किस तरह एग्जाम्पल से corroborate करते हैं। तो दैट वुड बी वेरी इजी। आपकी अपनी ऑब्जर्वेशंस होंगी, कुछ ये नहीं है कि सबका आंसर एक ही हो, इवन यू हैव totally different answer opposite to the answer of submitted by another student, still you will have marks। तो अब हमारे 16 सेक्शन तो हो गए हैं, तो अगला 17 हो जाएगा।
16 से ज्यादा होते नहीं है। 16 सेशंस होते हैं इंक्लूडिंग मिड टर्म एंड फाइनल टर्म। मिड टर्म और फाइनल टर्म मिला के 16 होते हैं। तुम्हारा तो मिड टर्म भी नहीं हुआ, फाइनल अभी होना है, तो 16 सेशंस हमारे हो चुके हैं, बल्कि 17 है आपका। तो 16 मैंने उस दिन दूसरी क्लास के साथ वो कर कंबाइन करके आपका कर दिया था। उस दिन भी कुछ लोग थे, खैर वो कोई मसला नहीं, उस दिन की भी अटेंडेंस में लगा दूंगा, आज की भी लगा दूंगा। जो लोग गूगल क्लासरूम में हैं उन सबकी तो अटेंडेंस लग जाएगी इंशाल्लाह, तो मसला नहीं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप जो जानबूझ के क्लास को अवॉइड करें, बिकॉज आई एम हियर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है फिर भी मैं ऑनलाइन होकर बैठा हूँ, ताकि कोई चीज आपके दिमाग में और कोई सवाल हो वो रह जाए और वही पेपर में आ जाए और आप गलत लिख दें, तो फिर वो मेरे लिए बड़ी गिल्ट होगी अगर आपके सर उस दिन मैंने पूछना था आपसे। और वैसे भी मतलब ये जो चीजें, वट एवर आई एम टीचिंग टू यू और अदर टीचर्स आर टीचिंग टू यू इन डिफरेंट field of work, different field of studies, different subjects, you must have knowledge, you must store that knowledge. That is not for getting through an examination, that is to use in your practical life. That must be a part of your knowledge reservoir, and you will continue utilizing that reservoir throughout your life, in your practical life, in your professional life. बिजनेस करें, आप जॉब करें, कुछ इवन आपके पर्सनल रिलेशन में हो, एक पढ़ा लिखा बंदा मैंने आपको बताया था, वो उसकी कम्युनिकेशन और होगी, जाहिल की और होगी, बीवी से लड़ने की टेंडेंसी, बहुत छोटी मोटी क्लैशेस, ये जो जमीनों के इश्यूज हो जाते हैं कजन के साथ, चाया चाचा के साथ, इनमें वो ज्यादा जल्दी लड़ पड़ेगा, पकड़ो छुरी, पकड़ो डंडा, ऐसी की तैसी साय को पकड़ लेते हैं। एक पढ़ा लिखा बंदा डिफरेंट तरीके से हल करेगा। तो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट an educated person and an educated person, that is the difference. How to behave in life, how to learn from experiences, how to learn from trial and error procedures, and how to behave in different type of situations in life. तो पढ़ा लिखा बंदा और तरीके से रिएक्ट करेगा, जाहिल बंदा और तरीके। तो इसमें आपकी पर्सनल रिलेशन कैसे होने चाहिए, दोस्त यार कैसे कैसे आपने दुनियादारी कैसे निभानी है, ऑफिस का काम कैसे करना है, फैमिली का काम कैसे करना है, तो ये सब चीजें नॉलेज होती है, आपकी जिंदगी बदल जाती है, आपकी पर्सनैलिटी पूरी बदल जाती है, आपका सोचने का अंदाज, आपका काम करने का अंदाज, आपका लोगों से मिलने जुलने का अंदाज, आपका अल्लाह के बारे में कॉन्सेप्ट, आपका लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में कॉन्सेप्ट, आपका अच्छाई बुराई के बारे में कॉन्सेप्ट, सच और झूठ के बारे में कॉन्सेप्ट। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन a person who is educated and that one who is not uneducated, who is uneducated. तो जो भी चीजें पढ़ाई जा रही है, बेसिक चीज तो ये होता है कि वो आप याद रखें। ये नहीं कि सोशियोलॉजी का एग्जाम दे दिया उसके बाद ये चीजें भूल जाएं आप, या इंग्लिश का एग्जाम दे दिया तो भूल जाएं, या सॉफ्टवेयर फना का एग्जाम दे दिया, या ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का एग्जाम दे दिया, या मार्केटिंग का एग्जाम दे दिया तो उसके बाद बस भूल जाए। ऐसा नहीं होता, फिर तो फायदा ही कोई नहीं है टीचर का पढ़ाने का, किताबें लिखने वालों का। आपके इतनी दूर से पेट्रोल खर्च करते हैं, आप घंटा ट्रैफिक जैम में फंसते हैं, यूनिवर्सिटी आते हैं, फिर क्लास अटेंड करते हैं, इतने पैसे भरते हैं आपके पेरेंट्स, आप फिर वापस तो एग्जाम क्लियर। तो यार वो बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटियां भी आपको मिल जाएंगी, यहाँ आपको जाना भी नहीं पड़ता, वो कहते हैं बस पेपर देने आ जाना। ये कराची में बहुत सी यूनिवर्सिटी को मैं जानता, जाओ जाके फीस जमा करा दो, उसके बाद पेपर देने चले जाओगे, वो डिग्री दे देंगे। आप जहाँ इंटरव्यू देने जाएंगे अगले आपको यूं उठा के डिग्री फेंकेंगे, चल भाग यहाँ से, जब आपको कुछ आएगा ही। तो नॉलेज बंदे में चेंज तो नॉलेज से आते हैं। आप जो इतने पैसे दे रहे हैं वो आप इसलिए दे रहे हैं कि आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आए, आपको नई चीजें मिलें, तो उनको यूटिलाइज किया करो, समझा करो, रट्टा नहीं लगाया करो। कोई या चीज मैंने आपको 10 बार पूछनी हो 10 बार पूछो, 100 बार पूछनी हो 100 बार पूछो, लेकिन वो आपके नॉलेज के रिजर्वायर का हिस्सा होनी चाहिए। उसकी क्रिटिकल एनालिसिस आपको करना चाहिए, जो सर ने बात बताई है कितने हद तक सही है, कितने हद तक गलत है, ये कैसे है, क्यों है, इस पे अमल करने से क्या होगा, इस पे ना अमल, सोसाइटी में कोई चीज है तो क्यों है। जैसे कई दफा हमारे जहनों में सवाल उठते हैं यार कि एक बंदा है वो शरीफों के घर पैदा हो जाता है और उसको अच्छी तरबियत मिलती है, अच्छी स्कूलिंग मिलती है, वो ना कभी थाना कचहरी देखता है, ना कभी, मरता भी इज्जत की मौत है, जनाजा भी बहुत से लोग हैं। एक बंदा स्लम्स में
चोर डाकू के घर पैदा हो जाता है, वो ना दीन का ना दुनिया का, ना उसको नमाज ना कुरान शरीफ को सिखाता है। फिर वो बड़ा होता है, यूं एक दिन पुलिस मुकाबले में मारा जाता है, आज भी लोग सीखते मिलाते हैं। तो इसका क्या कसूर था यार, ये तो पैदा ही वहां हुआ। तो अब ये चीजें अब दिमाग में आपके होता है ना, कि आपको सोचने पे मजबूर करती हैं कि मुख्तलिफ सोशल फैब्रिक्स जो हैं उनका क्या रोल है। और वी जब हम बात करते हैं एस्क्राइब स्टेटस और अकम्प्लिश स्टेटस और अचीव स्टेटस, अचीव स्टेटस या अकम्प्लिश स्टेटस वो है जो आप अपनी मेहनत से हासिल करते हैं, अपनी मर्जी से स्टेप्स लेते हैं, मेहनत करते हैं। मेहनत से मुराद अच्छा और बुरा स्टेटस भी आप हासिल कर लेते हो अपने करतूतों की वजह से। मतलब आपके वालिद एक प्रोफेसर हैं, ये तो आपका स्टेटस है। आपके वालिद बहुत शरीफ आदमी है, ये भी आपका स्टेटस है। आपके वालिद पठान हैं, अराई हैं, शेख हैं, सैयद हैं, सुमरो हैं, जट हैं, जो भी हैं, आपका वही स्टेटस हो गया। ठीक है, अब आप आगे जाके आपने डाके मारने शुरू कर दिए, तो लोग ये कहें हाँ यार ये है तो इतने बड़े अच्छे बाप का बेटा, लेकिन डाकू निकला, ये खुद बड़ा गंदा। तो वो जो आपने अचीव किया अपनी लाइफ में वो आपके साथ जाएगा। स्क्राइब स्टेटस लोग कहेंगे हाँ ठीक है यार ये तो है ही, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अब मैं किसी डॉक्टर के घर पैदा हो जाए बंदा, किसी स्वीपर के घर पैदा हो जाए, किसी पियोन के घर पैदा हो जाए, किसी सीईओ के घर पैदा हो जाए, वो कुछ नहीं कर सकता उस स्टेटस में। उसके बाद वो क्या करता है, यू नो वो हिटलर वॉज ए सिपाही, सिपाही जिसे कहते हैं, सिपाही था आर्मी में, चीफ बना, प्रेसिडेंट बना, पूरी दुनिया को उसने जंग में धकेल दिया। एक बंदे ने किया तो गलत तबाही मचा दी, बट उसकी इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस की बात बता रहा हूँ। दुनिया उसको कभी भूल नहीं सकेगी, अच्छे लफ्जों में भी याद करेंगे जो जर्मन हैं, और जो उसके अगेंस्ट हैं वो भी उसको याद करेंगे बुरे लफ्जों में, बट स्टिल वो पॉपुलर तो है। दुनिया का नक्शा चेंज कर दिया उसने। और कहा जाता है कि कुछ दिन और सरवाइव कर जाती उसकी फौजें, सर्दी से ना मरती, सर्दी ने मार दिया उसकी फौजों को, तो सर्दी से ना मरती तो हालात कुछ और होते। आज हम इंग्लिश की जगह जर्मन पढ़ रहे होते, दुनिया में इंटरनेशनल लैंग्वेज जर्मन होती, हर चीज जर्मन से होती, यूएनओ जर्मनी में होता, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज दुनिया के हेडक्वार्टर्स, बैंक के हेडक्वार्टर्स, इंटरनेशनल एजेंसियों के हेडक्वार्टर्स जर्मनी में होता। तो होता, ऐसा होता तो ऐसा होता, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन चांसेस है। अब बंदा एक सिपाही था और बड़े गरीब घराने का था, करोड़ों सिपाही दुनिया में यार मुख्तलिफ मुल्कों की फौजों में आए गए, कोई जानता भी नहीं, जानता भी नहीं सिपाही क्या होता है। या 18-20 साल नौकरी की, बच्चा बड़े से बड़ा ज्यादा फौज में दोबारा सिपाही करा दिया, खुद मर गए, फिर आगे वो बंदा कहाँ से कहाँ निकल गया। तो आप जब स्टडी करते हैं आप, मैं इसलिए मुझे बायोग्राफीज पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मैं आप लोगों को भी एडवाइस करता हूँ बायोग्राफीज पढ़ा करो बड़े बड़े लोगों की। आप हैरान रह जाते हो। नॉवेल तो चलो फिक्शन है, फिक्शन भी बहुत ज्यादा नॉर्मली दे आर बेस्ड ऑन टू स्टोरीज। मैं मेरी आवाज आ रही है ना? तो क्या बात, तुम लोगों की माइक नहीं है, बोलते क्यों नहीं है? मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैंने बताया इतने दिनों से मैं अंडर ट्रीटमेंट हूँ, इसलिए बेड पे ही आज क्लास ले रहा हूँ। तो मैं बड़ा जोर लगा के बोल रहा हूँ, मुझे एकदम ख्याल आया कि शायद मेरी आवाज आप लोगों का तक नहीं जा रही, मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ। तो एस्क्राइब स्टेटस में आप कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद आपका रोल शुरू होता है। वो कहते हैं ना, बिल गेट्स कहता है कि तुम्हारा बाप गरीब था, तुम्हारा दादा गरीब था, तुम गरीब पैदा हुए, ठीक है, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन तुम गरीब मरे, ये तुम्हारा कसूर है। तुम तो अपनी लाइफ बदल सकते थे ना, जैसे बिल गेट्स ने बदली है, बहुत से लोगों ने बदली है। तो अपॉर्चुनिटीज, हाँ हमें मिसालें मिलती हैं, जैसे भी पहले हम बात कर रहे थे, कुछ लोगों को बहुत कुछ बना बनाया मिलता है बाप दादा की तरफ से,
कुछ लोगों को जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, खुरचन से स्टार्ट करना पड़ता है, करते हैं, मेहनत करते हैं। फिर ऐसा भी है बहुत, तो हम जिससे कहते हैं यार मेहनत तो इन 10 बंदों ने की, 9 कामयाब हो गए, 10वें को जब वही मेहनत की जिस दिन उसका फ्रूट आना था उस दिन उसकी डेथ हो गई हार्ट अटैक से। अभी अशफाक साहब का जाविया वो अक्सर आप पढ़ते हो, देखते भी होंगे आप उनका प्रोग्राम अशफाक साहब का। चैट में अटेंडेंस लगा दो सारे, गो के मैं सबकी अटेंडेंस ही लगा दूंगा, क्योंकि ईद के फौरन बाद है, कुछ लोग अभी गाँव वाँव गए हुए हैं, ये है वो। फिर भी जो लोग हो आप लोग अपनी अटेंडेंस तो लगाओ ना, अच्छी बात है, लगा दोगे। तो वो कहते एक औरत थी, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, बड़ी गरीब थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, कुछ आता नहीं था, उसका एक ही बेटा था। तो उसने कहा कि मैं इसके लिए दूसरी शादी नहीं करूंगी, मैं इसको पालूंगी किसी भी तरह हो। जॉब कोई कर नहीं सकती थी, मैं इतनी बड़ी, तो उसने क्या, लोगों ने कहा कि तू तो हाउसमेड बन सकती है, फिर हाउसमेड बन जा, दूसरी शादी भी नहीं करेगी तो क्या करेगी, कोई कुछ आता नहीं। हाउसमेड बन गई वो, हालांकि अच्छी खासी इज्जतदार घराने की थी, लोगों के बर्तन धोए, कपड़े धोए, पोछे लगाए, बेटे को पढ़ाया, बेटा सीएसएस कर गया, माँ बूढ़ी हो गई, बेटा असिस्टेंट कमिश्नर लग गया सीएसएस करके। 6 महीने बाद एक एक्सीडेंट में बेटे की डेथ हो गई, माँ जिंदा है वो। तो शाह साहब कहते बंदा सोचता है या अल्लाह ये क्या, यानी उसको, उसका हस्बैंड भी गया, उसने उस बच्चे की खातिर शादी नहीं की, अब जब उसने उसको पाल पोस के बड़ा कर दिया, तो अब तो ये था कि वो इसी की माँ बन के जिंदगी में कुछ आराम पाती, नौकर चाकर होते, या उसकी भी डेथ हो जाती तो चलो होता कि उसने अपने बेटे को पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया, और अब उसकी ड्यूटी खत्म होगी, चलो अब बेटा इतनी अभी अपनी जिंदगी गुजारेगा, आगे इसके बच्चे होंगे, इसके पोते होंगे। माँ जिंदा रह गई बूढ़ी, और वो असिस्टेंट कमिश्नर बेटा वो एकदम। तो ये इस माँ के साथ क्या किया अल्लाह ताला ने। तो वो ये इशफाक साहब कहते हैं कि अल्लाह ताला की एक स्कीम है जिसमें हम सिर्फ सोच सकते हैं एक हद तक, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है ना जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। एक अल्लाह ताला की अपनी प्लानिंग है, हम हमारी प्लानिंग वो छोटी मोटी होती है, छोटी एक सर्कल में है, अल्लाह ताला की प्लानिंग बहुत वसी है। लेकिन ये चीजें हम सोचते हैं कि यार ये इसका इतना कसूर था, इसका कसूर था, इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, इस बाप ने, माँ बाप ने इतने धक्के खाए फिर भी बेटा चोरियां करने लग गया, माँ बाप को लोग गालियां देते हैं, अब थाने कचहरियों में माँ बाप को भी जाना पड़ता है। ये तो बड़े शरीफ थे, कोई भी माँ बाप नहीं चाहता उनका बेटा चोर डाकू बने, फिर भी लोग कहते हैं देखो माँ बाप, इनको पता होना चाहिए था इसको कि बेटा क्या कर रहा है, ये अब वो है। तो हर किस्म के रिएक्शन होता है उन पेरेंट्स के खिलाफ, मतलब कि इनका क्या कसूर। या एक बंदा है जैसे मैंने बताया, उसका बाप ही चोरियां करता था, वो उसके घर पैदा हो गया, अपने यार इसका क्या कसूर, बचपन से ही बाप ने इसको 7 चोरियों पे लगा लिया, इसको क्या पता कि इज्जत की जिंदगी क्या होती है। तो देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स इन लाइफ कि इंसान किस हद तक, कौन सी चीजें उसके अपने बस में है, कौन सी चीजें उसको बाय बर्थ मिलती हैं जिनको वो चेंज नहीं कर सकता, और उसके बाद उसकी स्ट्रगल शुरू होती है। कुछ लोगों को चीजें इजी मिलती हैं, कुछ लोगों को चीजें मुश्किल, कुछ लोगों के रास्ते फूलों वाले होते हैं, कुछ लोगों के रास्ते कांटों वाले होते हैं, बट स्टिल यू हैव टू पेव योर वे फॉर सक्सेस। उसी दुनिया में आपको जाना है, लड़ना है, दैट इज सोसाइटी। जी, अब कोई क्वेश्चन पूछ लो, कोई और चीज। तो जो लोग अब ज्वाइन किया है, तो अब तो मीटिंग भी खत्म होने वाली है, उनके लिए बता दूं, वो 50% होगा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर ना, जिसको हम कह सकते हैं, उसमें एमसीक्यूज होंगे, देयर वुड बी ट्रू फॉल्स सेक्शन, एंड 50% वुड बी सब्जेक्टिव टाइप, जिसमें आपको थ्योरेटिकल आंसर देने पड़ेंगे, लेंथी आंसर,
और ज़ाहिर है ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो वो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बुक्स में या गूगल पे नहीं मिलेंगे, बल्कि हर एक का आंसर जो है वो डिफरेंट हो सकेगा, आपकी अपनी सोच के मुताबिक होंगे, आप किस तरह उस चीज को देखते हैं। तो वो क्वेश्चंस हो जाएंगे इंशाल्लाह। जैसे कि मैंने बताया शुरू में वलीद था, खाली वलीद को बताया कि वो एक बंदा है, वो यहाँ पैदा हुआ है, यहाँ यहाँ जाता है, उसके दोस्त है, एक दिन वो पकड़ा गया। इसमें इसमें आप एनालाइज करो कि कितना कसूर उसका अपना था, कितना सोसाइटी का था, कितना माँ बाप का था, कितना स्कूल वालों का था। यूं ही कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे 2 क्वेश्चंस होंगे छोटे छोटे, और एक पार्ट एमसीक्यूज का होगा, और 2 आवर्स का पेपर होगा आपका। अभी तक जो डिसाइड हुआ है, क्योंकि जाहिर है अभी फाइनल नहीं हुआ, ये मीटिंग्स हो रही हैं, कुछ चीजें फर्दर प्रोसीड करती हैं, कुछ चेंजेस आती हैं, डेवलपमेंट होती हैं, तो डेफिनेटली आई विल मेक यू पीपल नो। अभी किसी भी वक्त ये खत्म हो जाएगा सेशन, तो जो जो क्वेश्चंस पूछने हैं पूछ लो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो आप बोल रहे हैं 2 आवर्स का पेपर होगा, सर हम फिर कैसे कर सकेंगे? ऑनलाइन होगा नॉर्मली ना, तो 3 आवर्स का होता है, तो तो कुछ छोटा होगा ना, तो मैं अच्छा 3 आवर्स का अच्छा लगता है, 2 आवर्स का अच्छा छोटा पेपर होगा, तो मैं क्यों चाहते हो कि लंबा पेपर हो? बस सर लेंथी ना हो, बाकी सब फुल ठीक लेंथी है। होगा। जब 3 आवर्स का होगा तो क्वेश्चन ज्यादा होंगे, 2 आवर्स का होगा तो क्वेश्चन कम होंगे, 1 आवर का होगा तो क्वेश्चन और कम होंगे। जाहिर है उसके टाइम के लिहाज से लेंथ होगी ना पेपर की। सही है सर, थैंक यू। दिया करो चीज, बस दिमाग को इस्तेमाल करना। मैंने बताया है पेपर में कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, कुछ भी आसान भी नहीं होगा। उनके लिए आसान नहीं होगा जो रट्टे मारते हैं बुक से हर चीज का जवाब ढूंढते हैं। अपने पास से आपको लिखना होगा, अपनी ऑब्जर्वेशन से। और इतना कुछ जितना मैं बताता हूँ आपको स्लाइड से हटके एग्जाम्पल देता हूँ दुनिया की, पाकिस्तान की, ये वो जैसे भी। तो सोसाइटी को बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आप रह रहे हो इसमें तो ऑटोमेटिकली आप स्टडी कर रहे हो, आप देखते हो रिश्तेदारों ने हमारे साथ ये कर दिया, अबू के रिश्तेदारों ने ये किया, अबू के रिश्तेदारों वो फला बंदा फैमिली में अच्छा था, वो कैरम बोर्ड खेलता था, स्नूकर पे जाता था, वहां से बुरी आदतें पड़ गई, इसने इससे देख के सिगरेट शुरू कर लिया, उसका ये पड़ गया, ये पीछे रह गया, ये भाई बात। तो आपके इर्द गिर्द इतने केसेस होते हैं बिहेवियर के, बिहेवियरल चेंजेस के, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के। तो मेरी दुआ भी करें तबीयत मेरी ठीक हो जाए, ताकि मैं सही से सेशन लेता रहूं। हाँ। स्लाइड्स को एक नजर देख लीजिएगा, थोड़ा उनको समझिएगा। देखना नहीं है, रटना नहीं है, चीज को समझना है। मुझसे पूछ लो, चाहे 10 बार पूछ लो, वो चीज समझना आए। चीजें बड़ी इजी है, बहुत इजी है। सोशियोलॉजी तो यार केसेस में लोग लाजमी रखते हैं ऑप्शनल में 100 नंबर की हर, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स होता है, इससे पढ़ना ही नहीं पड़ता। बगैर पढ़े जाके एग्जाम में बैठ जाओ, कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जिसका आपको जवाब ना आए। हाँ, रेफरेंसेज है कि फला सोशियोलॉजिस्ट ने ये डेफिनेशन दी थी सोशियोलॉजी की, सोशियोलॉजी भी एज ए सब्जेक्ट इस दौर से शुरू हुई है, वो चीजें आपको याद करनी पड़ती। बाकी तो बिहेवियर, पॉलिटिकल पार्टीज, ग्रुप्स, क्राउड, मास, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, प्रोपेगेंडा, rumors, fake news, enticement, actions, reactions, people interactions, people socialization, acceptance of minorities, this and that.
काफी लोग आ गए. I was not expecting this trend today. I thought people are in their native towns and villages for Eid, and they will definitely come to the city only on Sunday or after that. फिर भी माशाल्लाह काफी लोग आ गए यार. अब 10 people are here. Very good. So एक चीज याद रखो, घर में या रिलेटिव के घर में हो या कहीं भी हो या गांव में शहर में, कोशिश करना एग्जाम के दिनों में आप ऐसी जगह हो जहाँ सिग्नल बेहतर हो, मतलब अच्छा नेट फैसिलिटी अच्छी हो एग्जाम के दिनों में. ये जरूर मेक श्योर करना. मतलब जैसे आप फिल्म में हो तो करीबी कोई अगर कोई थोड़ा टाउन है या थोड़ा बड़ा शहर है या कोई कदर चचा मांगू या तो वहां चले, अगर आपको लगता है उनके घर नेट फैसिलिटी अच्छी है. वरना इवन फिर अगर आप यहाँ शहर में आते हो कहीं भी हो तो कोई मसला नहीं है किसी इलाके में, तो उन दिनों कोशिश करो कोई यूएसबी अच्छी है तो उसमें कोई डाटा डलवा लो, कोई रिचार्ज करवा लो. अच्छी वाली, थोड़े पैसे तो लगेंगे, थोड़ी महंगे वाली. वो क्या फायदा कोई नहीं. मैंने 800 रुपए वाली थी, फिर मैं 1200 रुपए वाली पे आया, फिर मैं 2000 रुपए वाली पे आया, फिर मैं 2200 रुपए वाली पे आया. वो रिजल्ट तो खैर वही है, स्पीड उसकी वही है, तो पागल बना आ रहा है सबको. लेकिन अब ये है कि दाएं बाएं जिनसे पूछता हूँ मैं, वो कहते हैं यार हमारा नेट भी ऐसे ही चल रहा है क्योंकि हालात ऐसे हैं, सारा काम ऑनलाइन हो रहा है दुनिया में. तो वो नेट वाला भी वो यही कहता है जनाब के ये लोग यूज ज्यादा कर रहे हैं, इस वजह से ये हो गया वो हो गया. अब क्या करे बंदा यार. तो वो देखने में बहरहाल जो अवेलेबल है सर्विसेज उनमें जो बेस्ट है ग्राम के करीब वही रख, ताकि कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम ना हो, कोई हरज ना हो. बस इंशाल्लाह अल्लाह मालिक है यार. तो बहुत सी चीजें हैं दुनिया में फर्स्ट टाइम करनी पड़ती हैं और अब सिचुएशन ऐसी है कर रहे हैं, ठीक है हो जाएगी. अल्लाह करेगा ये वक्त भी गुजर जाएगा, अच्छा वक्त आएगा इंशाल्लाह, सब ठीक ठाक होंगे, दोबारा से बाजार खोलेंगे, ये डिप्रेशन ये टेंशन सब खत्म हो जाएगी. People say, even experts and analysts say, the people will start behaving in a different way. They will start thinking in a very different way after this corona session. कुछ 6 महीने तो हो गए, कुछ नहीं और रहेगा. था तो लोगों का मिलना जुलना, लोगों का गैदरिंग करना, लोगों को वो शादियां करना, पार्टीज करना, कॉन्फ्रेंसेस करना, इस एक साल में दुनिया बिल्कुल चेंज हो जाएगी. तो लोगों का बिहेवियर, बिजनेस करने का तरीका, ये वो चीजें सब चीजें. एक तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी है कि दुनिया को इस चीज पे लाया जा रहा है कि ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आए लोग, घर बैठे यहीं से पेमेंट की, ऑनलाइन पे चीज घर डिलीवर हो गई, हर चीज हो गई, पैसे यहाँ से यहाँ आ गए आपके घर से. ये करेंसी का रोल और आने जाने का रोल बिल्कुल कम से कम हो जाए. तो अब अल्लाह जाने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में क्या है, लेकिन ये चीजें अब आएंगी तो सही, चेंज तो आएगी सोसाइटी में. ये जो इतना कुछ हुआ है इसके बाद, but some people say with the passage of time people will forget about these after 1 year, 2 years, 3 years, and there would be normal life and it would just be an old memory कि कोरोना भी कोई था.
जी, एनीथिंग फ्रॉम यू? सो गए सारे? नहीं नहीं सर, जाग रहे हैं। तबीयत मेरी खराब है, एनर्जी लेवल डाउन तुम लोगों का हुआ हुआ है। शाहजहान, यू आर अ फीमेल। मैं नाम से मुझे लगता था तो यस मेल सर। हो। तो ये तुम्हारा असल नाम क्या है? ये मोस्टली सर मेरा यही नाम है, शाहजहान नागा। नहीं नहीं, जनैन नाम है, शाह तो सैयद होने की वजह से लगाती हो। नहीं सर, ये असल में वो नाम के साथ ही आता है वैसे तो, लेकिन मैं जनैन ही बोलती हूँ वैसे। जनैन, माशाल्लाह। इसका नाम क्या है? इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब खुशकिस्मत है, और सर फारसी में इसका शाह जुनैन का मतलब होता है औरतों की सरदार। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह तुम्हें सरदार बनाए, लाइक करे, कामयाब करे। कोई और आवाजें तो नहीं आ रही मेरे अलावा आप लोगों? आ रही है सर। हर कोई रो रहा है, उसकी हरी आवाज कंटिन्यूअसली। यार मेरे इसलिए ये लगा रहा है, तबीयत भी खराब है, बट आज मैं अपने ऑब्जर्वर दूसरे रूम में ही ना, जैसे रूम में बैठते हैं तो मैं यहीं से ऑनलाइन हूँ, बड़ी मुश्किल। यार दे दो दे दो। हाँ हाँ। तो बेचारा अनअटेंडेड था तो रो रहा था। माय वाइफ वाज इन वॉशरूम। तो वैसे तो मैं अपने स्टडी रूम में चला जाता हूँ वहाँ, तो आज मेरी हिम्मत नहीं हो रही। तबीयत खराब है काफी दिनों से, बेचारा रो ही जा रहा है। मैं वही देखा कि अभी सोशियोलॉजी का एक सब्जेक्ट है। बच्चे, हम समझते हैं बच्चे बच्चे हैं, बच्चे रियलाइज करते हैं जितने मर्जी छोटे हों, चाहे वो एक दिन का बच्चा हो। मैंने आपको मैं शुरू के लेक्चर में बताया भी था, बच्चा पूरा कम्युनिकेट करता है। आप उसको घूर के देखें, उसे पता चल जाता है। आप उससे गुस्से में बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे, वो समझता है, टोन समझता है, उसी तरह रिएक्ट करता है। अब वो काफी देर से रो रहा था कि मुझे उठाए, कोई उठाए, और अभी वो इतना चीख रहा है, ये जिद नहीं आ जाता। अगर आप इसके लिमिट देता है आपको 3-4 मिनट की, उसमें आप इसको उठा लें तो ठीक है। उसके बाद आप उठाए ना तो फिर ये 1 घंटा रोता है, एहतजाज करता है कि जब मैं रो रहा था तुमने मुझे फर्स्ट टाइम क्यों नहीं उठाया, मेरी पहली चीज को। और बाकायदा ये मैंने देखा है कि हमेशा ऑब्जर्व किया है, हमेशा जब कोई देर कर दे आने में तो ये यूं बिहेव करता है। तो बच्चे भी एक एक चीज नोट करते हैं। वो आजा, दो इसको मुझे, मैं इसकी मुलाकात कराता हूँ आपसे। अच्छा इसको मैं चश्मे में बहुत अच्छा लगता हूँ, ये चश्मा पकड़ता है मेरा सबसे पहले। क्या हो गया? Nobody was responding to you? Huh? Unhappy? चलो जाओ, अभी मूड में नहीं आई आराम से बैठने की, चीजें खींचेगा। माशाल्लाह सर, बहुत प्यारा है। बस दुआ किया कर उसके लिए भी और मेरे लिए भी, उसकी अम्मा के लिए भी। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग बंदा रिस्पॉन्ड करता है। बंदे को इतने से बच्चे को आप तजर्बे करें, कभी तो 1 महीने के बच्चे को भी, तो आप चीख के बोलेंगे, वो पता चल जाएगा कि नेगेटिव बंदा है कोई है नहीं। आप उसको घूर के देखेंगे, हम समझते हैं इतने बच्चे को पता नहीं चलता, उसको सब पता चलता है। तो उसकी अपब्रिंगिंग में स्टार्ट वहीं से हो जाता है।
उसके बाद वो फिर वैसे ही बिहेव करता है जैसे इर्द गिर्द के लोगों को देखता। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो स्कूल जाता है, फिर वो स्कूल के बच्चों को देखता है, फिर वो कोई उसको पसंद आ जाए तो उसको कॉपी करने लगता है कि शायद ये देखता है मैं ऐसा बनूं, मैं ऐसा बनूं। फिर जब कॉलेज लेवल पे जाता है तो फिर वहाँ नए दोस्त बनते हैं, फिर यूनिवर्सिटी में ये वो, तो वो इस तरह इंस्पायर होता रहता है इर्द गिर्द से। हर हर एक्शन का रिएक्शन, हर रिस्पॉन्स का रिस्पॉन्स होता है। तो वो इसलिए कहते हैं कुछ सोसाइटी कुछ कुछ। बहरहाल इस बहस में जब हम जाते हैं ना, जब वो उसने रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से या सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें लगता है यार कि वो कुछ चीजें बंदे के बस में होती हैं, कुछ चीजें बंदे के बस में नहीं होती हैं। किसी को उसके कसूर से ज्यादा सजा मिल जाती है या किसी को उसके कसूर से कम सजा मिलती है। ये बड़ी लंबी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की थ्योरी है और हर सोसाइटी में ही होता है। जाहिर है, कहते हैं ना इंसाफ तो सिर्फ अल्लाह कर सकता। बंदा जज हो गया, आप हो गए, आपने 4 बंदों ने झूठ बोल दिया, झूठी गवाही दे दी, आपसे फैसला कर दिया, वो तो अल्लाह ही जानता है। तो बंदा दीवार के बाहर तो नहीं देख सकता असल चीज क्या थी। बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं, लोग बरी हो जाते हैं, कोई पावरफुल होते हैं। जैसे वो साहिवाल वाला वाकया हुआ, ये आप देख लें कि रावण बार वाले वाकयात हुए, तो हुआ ना, कुछ भी नहीं उन लोगों का। वो टीवी पे बात भी नहीं करता। कभी चीनी का मसला, कभी आटे का मसला, कभी प्लॉट का मसला। कत्ल करना कोई जुर्म ही नहीं है, रोज कितने कत्ल होते हैं, वो कहते हैं ठीक है होने दो, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो लगता है कि सोसाइटी जकड़ी हुई है एक चेन में। जैसे कहते हैं ना, आप सिस्टम, हर बंदा चाहता है इंसाफ हो लेकिन हो नहीं पा रहा। तो उसमें सबसे बड़ा मैंने आपको बताया इक्वालिटी। मैंने जो ऑब्जर्व किया, जिंदगी में इक्वालिटी नहीं होगी तो आप कभी भी इंसाफ नहीं कर सकते। यानी एक बंदा शौक से चोरी करे, एडवेंचर के लिए, पकड़े गए ना ऐसे ऐसे बड़े घरों के बच्चे, मोबाइल छीनते थे, पर्स छीनते थे ऐसे एडवेंचर के लिए, और एक बंदा 3 दिन से भूखा हो, वो मोबाइल छीने, तो जमीन आसमान का फर्क है। सजा दोनों के लिए एक ही है, क्योंकि ये तो आप बैकग्राउंड तो देखते ही नहीं है क्या हुआ किस तरह। किसी के पास, किसी की लाइबिलिटी ज्यादा है, किसी की लाइबिलिटी कम है, कोई वल्नरेबल है, कोई वल्नरेबल नहीं है। तो कोई कोई दौलत की ज्यादती की वजह से मुजरिम बनता है, कोई दौलत की कमी की वजह से। सजा दोनों को एक जैसी मिलती है। तो वो इसको कहते हैं सिस्टम की खराबी। सिस्टम बनता है, चंद लोग मिलके बनाते हैं, और वो सिस्टम फिर वो आपका वो बन जाता है कि जी जब तक कोई नया सिस्टम नहीं आता यही चलेगा, साइन हो गया, वो आपका एक डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो उसी पे सारे चलते हैं। फिर सालों बाद कोई बड़ा चीखता है उस पर, तो उसमें चेंजेस आती हैं, वरना उसको रिवाइज भी कोई नहीं करता। एक सजा एक खास मौके पे दी गई, वो चलती रहती है फिर। तो सारों के पास इक्वल एजुकेशन हो, इक्वल वेल्थ हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, फिर सब पे बराबर का कानून अप्लाई हो सकता है। हम क्या करते हैं, हम एक बंदे की 10 लाख सैलरी है, वो भी रिश्वत लेता है। एक बंदे की 10,000 सैलरी है, वो भी रिश्वत देता है। वो 10,000 वाले को ज्यादा सजा मिलती है, 10 लाख सैलरी वाले को कम। तो वो ये चीजें। और बस 1 मिनट रह गया, डिस्कनेक्ट हो जाएगा ऑटो पे। कुछ और क्वेश्चन हो तो पूछ लो, बाकी फिर वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर करते रहना मैसेज कुछ भी। नेक्स्ट सेशन करना है फिर। 16 आपके कोर्स तो कवर हो गया, 16 सेशन भी हो गए हैं। 16 सेशन होते हैं मिड टर्म और फाइनल मिला के। और अभी तो आ, ये बगैर एग्जाम के 16 सेशन हो गए। यानी अभी एग्जाम होते तो 18 सेशन हो चुके होते हमारे। अभी 17वां आपका एग्जाम होगा, 16 हो गए हैं, मिड टर्म नहीं हुआ। तो अगली एक और क्लास रखनी हुई तो बता देना, जिस दिन मर्जी रख लो।